You get around $6 in value when opening a bank account. Where does we go? Bye helicopter. Hey guys, welcome back to our channel. लास्ट वीक की वीडियो में हमने बात की थी कि आपके फर्स्ट 100 डेज कनाडा में कैसे होंगे. We talked about the struggles and more importantly how to prepare for it. And today we talk about what happens after those 100 days. So stay tuned and let's get started. Let's do a small recap from the last video in case you missed it. We talked about the first 30 days called Crazy Land, where you need to book an Airbnb for minimum of 15 to 30 days, get your bank account sorted as early as possible because हमें bank statement चाहिए होती है to get some of the other documentation sorted. And finally, we also try to find a short-term accommodation within the budget of $1,500. Next comes 30 to 60 days called the foundation stage, where we buy furniture, search for jobs, which is obviously very important, apply for driving license, which is also important, even if you don't have to buy a car. And the final 60 to 100 days is either a building stage or extreme struggle stage, where you get a job, you buy a car, move into a long-term accommodation, जैसे कि हम move करे थे in our condo, or this is also the stage of extreme struggle if you do not get a job, जहाँ पे आपको mentally strong होना पड़ेगा, maybe even start looking for survival jobs to pay the bills and go on an extreme budget. आज we'll talk about what happens after the first 100 days because 3-4 महीने में ज़्यादातर लोगों को जॉब मिल जाती है considering the fact that you are good at what you do. एंड अगर आप कपल हो तो किसी एक जने को तो जॉब मिल जाएगी एंड द बिल्स आर गेटिंग पेड. एंड जब जॉब लग जाती है उसके बाद हम ले जाते हैं कार. एंड जब हमने कार ली थी अपनी Hyundai Elantra, जिसको हम राम प्यारी भी बोलते हैं, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आपने Hyundai Elantra क्यों ली, बिकॉज Elantra की जो रीसेल वैल्यू है वो कम है, या फिर उन्होंने बोला SUV क्यों नहीं ली क्योंकि वो ऑल व्हील ड्राइव होती है, यहाँ पे विंटर्स में सही रहेगी. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कार इज़ अ लाइबिलिटी, एंड जितने कम पैसे खर्चो कार के ऊपर उतना ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में उसकी वैल्यू हमेशा नीचे जाती है. एंड इट हैज़ टू qualify our rule of 10, which basically means that the cost of owning a car that includes the monthly payment, the insurance जो car insurance होती है, and the petrol जो gas bill होता है, all that should be less than 10% of your carry home income after tax. So हमारी कार पेमेंट इज $325 पर मंथ. $268 जब हमने ली थी तब हमारी इंश्योरेंस थी, अब कम है, एंड $100 के आसपास हमारा गैस का बिल था. तो टोटल मिला के इट वॉज अराउंड $700. हमारी उस टाइम इनकम थी जो हाउस होल्ड इनकम आफ्टर टैक्स थी, दैट वॉज अबाउट $8,000. सो दिस कार वॉज वेल विद इन द 10% रेंज. अगर इसके अलावा कोई भी कार लेने जाते तो या तो उसकी इंश्योरेंस ज़्यादा होती या फिर जो कार पेमेंट है वो ज़्यादा होती, एंड वो 10% वाला रूल क्वालिफाई नहीं करता. एंड दैट्स द रीज़न वाई वी बॉट Elantra and we stuck to the 10% rule, and you should too. The next step is moving into a long-term lease, which is moving into actually a bigger house. Mostly जब लोग यहाँ आते हैं तो they live in a basement which is small. We lived in the basement for 5 months and then we moved into our condo. लेकिन इसमें भी लोग 2 गलतियाँ करते हैं. Number 1 is choosing the wrong neighborhood if you have a car. अब इसमें भी 2 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. पहला is try to rent a place which is near to your work. अभी तो वैसे वर्क फ्रॉम होम है लेकिन ऐसे हमेशा नहीं रहेगा. दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इज जब आप अपनी लीज साइन कर रहे हो तो आपको कोई जगह पसंद आई है तो अपनी इंश्योरेंस कंपनी मतलब कार इंश्योरेंस कंपनी से पहले कोट ले लो कि वहाँ पे इंश्योरेंस कितनी है. क्योंकि अगर आप ओंटारियो आ रहे हो जैसे बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे इंश्योरेंस इज वेरी हाई, जैसे कि ब्रैम्पटन एंड मिसिसागा. अगर आप इंश्योरेंस का फैक्टर इंक्लूड नहीं करोगे तो जो रूल ऑफ 10 है दैट कैन गो फॉर अ टॉस. द सेकेंड मिस्टेक इज पेइंग वे टू मच रेंट. ये हमने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि यू शुड फॉलो अ रूल ऑफ 25, जिसका मतलब है योर रेंट प्लस यूटिलिटी शुड बी लेस देन 25% ऑफ योर हाउस होल्ड कैरी होम इनकम आफ्टर टैक्स. अब हमारे केस में हमने जैसे बताया हमारी सैलरी अराउंड $8,000 थी जो कैरी होम आफ्टर टैक्स थी. सो हमारा बजट वॉज $2,000 व्हेन वी वर रेंटिंग अ प्लेस. $1,900 हमारा रेंट था. उसके अलावा वी वर पेइंग यूटिलिटीज़ फॉर अबाउट $70 एंड $50 के आसपास जो होम इंश्योरेंस थी, जो रेंटल इंश्योरेंस होती है, प्लस वाईफाई का बिल. तो टोटल मिला के $2,025 पड़ा था, थोड़ा सा ज़्यादा हमारे रूल ऑफ 25 पे, बट इट इज़ वेरी वेरी क्लोज एंड दैट्स अ वेरी गुड रूल दैट यू कैन एक्चुअली फॉलो व्हेन यू आर कमिंग हियर. उसके बाद वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ बजटिंग. आई अंडरस्टैंड जॉब लगती है तो हाथ थोड़ा खुल जाता है, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं. वी आर नॉट सेइंग कि आप कंजूस हो जाओ, बट अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करो एंड बजट करो हर सेक्शन में
कि खाने का इतना खर्चा करेंगे, इंजॉयमेंट पे इतना खर्चा करेंगे, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिखेंगे कि प्लीज कंजूस मत बनो, थोड़ा खर्चा कर लिया करो, एंड थैंक यू फॉर द कंसर्न, बट सेविंग्स के बिना घर नहीं बनेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, एंड द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम विल ऑलवेज रिमेन अ कॉन्सेप्ट, एंड ओल्ड एज में जाके बहुत प्रॉब्लम होगी। तो गाइस हमने पूरी इन्वेस्टिंग पे एक सीरीज बनाई थी, डू चेक दैट आउट, डू योर रिसर्च, आपको ताकि पता हो कि यहाँ पे आके कहाँ पे सेव करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। बट सेविंग एंड इन्वेस्टिंग विल सिंगल हैंडेडली डिसाइड हाउ यू लिव द नेक्स्ट 40 years ऑफ योर लाइफ इन कैनेडा। सेविंग्स की बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट BMO's न्यू टू कैनेडा प्रोग्राम, where you can get around $600 in value when you open a bank account with them. पहले तो you get $300 of cash bonus when you sign up. उसके बाद if you add a family member तो आपको $50 additional मिलेंगे as part of the family bundle. देन मंथली बैंकिंग फी जो है वो वेव ऑफ हो जाएगी फॉर द फर्स्ट ईयर विच इज अराउंड $200, एंड उसके अलावा यू ऑल्सो गेट अ फ्री स्मॉल सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स जिसकी वैल्यू $60 है, एंड दिस फीस इज वेव्ड ऑफ फॉर द फर्स्ट ईयर। एंड दिस टाइम देयर इज वन एडिशनल बोनस. If you activate an eligible charter plan, you get 3 GB of data that can be used for 12 months, which is very nice because यहाँ पे data plans are very expensive and 3 GB is pretty good. अब आप देख ही रहे हो एक्सपेंसेस कैसे बढ़ते जाते हैं when you come to Canada, and you need to save wherever you can, and BMO helps you to do exactly that. And offer छोड़ो, BMO is one of the oldest banks in Canada, and it's pretty cool to open a bank account with them even if the offer wasn't there. So if you have landed in Canada in the last 5 years, you can open an account with BMO. The link is in the description below. Now coming back to our list of things to do in the first 3 to 6 months, इसमें बहुत बड़ी चीज़ आती है building your credit. सारा जितना भी खर्चा कर रहे हो यहाँ पे आके, everything should be done on your credit card. अब हमने इस पे पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई थी of how I built and we built our credit score to 780 in the first 6 months. So the link is in the description below. But दो चीज़ों का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है. Number 1, you should always pay your bill on time. एक भी पेमेंट मिस नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो बहुत गंदा हिट करता है क्रेडिट स्कोर को. एंड नंबर 2, never use more than 30% of your credit limit. तो यहाँ पे जब हम आए थे तो हमारे को $3,000 की लिमिट मिली थी. So you should never spend more than 30%, which is $900 in a month. अगर इससे ज़्यादा खर्चा होता है तो make sure you are paying that off, चाहे महीने में 2 बार पेमेंट करनी पड़े. And finally, in the first 6 months, you will be making new friends or meeting your old friends, and आपको होगा बहुत सारा FOMO क्योंकि they'll be buying fancy cars or bigger houses, and आपको लगेगा कि आपको भी जल्दी से घर खरीदने के बारे में सोचना चाहिए. Do not give in to that. आपके जो फ्रेंड्स हैं हो सकता है उन्हें 1-2 साल हो चुके हो आए हुए, and they are ahead in the journey than you. अब अपना एग्जाम्पल लेते हैं. आई एम टर्निंग 34 एंड वी स्टिल लिव इन अ 1 bedroom कॉन्डो. अपना है बट इट्स अ कॉन्डो, एंड आवर फ्रेंड्स आर एक्चुअली बाइंग डिटैच्ड हाउसेस. तो थोड़ा बहुत फोमो होता है हमें. एंड आप भी जब यहाँ पे आओगे आप बोलोगे अरे पोटैटो टॉकीज ने तो 2 घर खरीद लिए. बट यू कैन नॉट कंपेयर योर सिचुएशन विद आर्स, और वी कैन नॉट कंपेयर इट विद आवर फ्रेंड्स, बिकॉज सब लोगों की सिचुएशन अलग होती है, सब लोगों की अफोर्डेबिलिटी अलग होती है, सब लोगों की सैलरी अलग होती है, सब लोगों का रिस्क टेकिंग एपेटाइट अलग होती है. सो यू नीड टू टेक अ डिसीजन दैट्स बेस्ट फॉर यू एंड नॉट लुक एट अदर पीपल ऑफ व्हाट दे आर डूइंग. अब बात करते हैं नेक्स्ट 6 महीनों की. Now you have a car, you have a bigger house, you have good jobs, and you're feeling a little settled here. As all this is getting settled, you start missing your family so much. I still remember जो मेरी पहली राखी थी शादी के बाद की, I was alone in Hong Kong and घर पे सब मेरे cousins enjoy कर रहे थे. It actually broke my heart. Our first Diwali, oh God, I'm emotional. I don't know why I'm emotional. Same thing happened on our first Diwali as well. We were all alone, and it's difficult because you're missing your family a lot. So how do we fix it? Number 1 is you make more friends. जब आप यहाँ पे आते हो तो जो फ्रेंड्स आपके हैं वो भी अपनी फैमिली से अवे हैं. सो यू एक्चुअली मेक स्ट्रॉन्गर फ्रेंडशिप. यहाँ पे जो भी सुख है, दुख है, जो भी फेस्टिवल्स है, राखी है, दिवाली है, सब कुछ यू एक्चुअली सेलिब्रेट विद देम. दैट्स व्हाट वी आल्सो डू, एंड दैट एक्चुअली बिकम्स अ लॉट ईजियर विदाउट फैमिली. मम्मी पापा को तो वो अभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते, बट इट जस्ट गेट्स अ लिटिल बिट ईजियर एंड यू बिकम लेस ऑफ अ सिमरन ऑन दिवाली एंड राखी. एंड दूसरी चीज़, इट वॉज ऑलवेज आवर प्लान टू गेट आवर पेरेंट्स हियर. इसके बारे में हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी बात करी थी, सो डू चेक दैट आउट इन केस यू मिस्ड इट. Now the interesting part. We need to think about buying a house.
एंड इसका ये मतलब नहीं कि 6 महीने बाद घर खरीदना है, इसका ये मतलब है कि 6 महीने बाद यू नीड टू प्लान द नेक्स्ट 12 मंथ्स कि आप कितनी सेविंग करोगे, कितनी डाउन पेमेंट इकट्ठी करनी है। एंड अगर सेविंग्स प्लान के अंदर इनफ सेविंग्स नहीं हो रही कि बाय द एंड ऑफ 12 मंथ यू कैन एक्चुअली बाय अ हाउस, या फिर 24 मंथ्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट 12 मंथ्स, 24 मंथ्स में होता है, तभी जो भी है एक प्लानिंग करो। एंड अगर ऐसा लग रहा है कि सेविंग नहीं हो रही, देन यू नीड टू थिंक कि क्या साइड हसल करनी है, क्या साइड बिजनेस करना है, क्या ऐसे करें कि हमारी सप्लीमेंट हो जाए इनकम, अगर जॉब चेंज करनी है, ज़्यादा सैलरी होनी चाहिए, वो सब चीज़ें डिसाइड करनी है इन दीज 12 मंथ्स सो दैट यू आर एबल टू बाय अ हाउस वेदर इट्स 12 मंथ्स, इन 24 मंथ्स और इन 36 मंथ्स। या फिर चेंज योर प्रोविंस। टोरंटो एंड वैंकूवर आर मोस्ट सॉर्ट आउट प्लेसेस, लेकिन देयर आर सो मेनी प्रोविंसेस एंड सो मेनी सिटीज दैट यू कैन थिंक ऑफ टू स्टे। अब फर्स्ट ईयर में यू कैन रिफ्लेक्ट ऑन कि आपको एक्चुअली इन सिटीज़ में रहना है या नहीं, या फिर यू हैव टू मूव अ लिटिल आउटस्कर्ट्स। जैसे ऑन्टेरियो में, जैसे वी हैव मूव टू किचनर बिकॉज houses are still affordable here. You can move to different cities in different provinces like Saskatoon है, Regina है, Calgary है, Edmonton है. They're very beautiful cities and very affordable, घर wise भी और वैसे भी. And last but not the least, do not fall into your comfort zone after you get a job, after you have a car, after down payment has been collected. After about 1 year of coming here, ask yourself this: are you paid enough? If the answer is no, get yourself a new job. Ask yourself, are you enjoying what you are doing? And if the answer is no, do something that you love. And finally, ask yourself this: are you tired of paying taxes? Instead of cribbing about it, we need to start investing into a side hustle and start a business. And this is not because you will earn more money, this is because you will be more at peace if the answer to all these three questions is a yes. So I met this person who was a creative director in India. यहाँ पे आके he actually became a customer service representative in a bank, and for the last 2 years he has been doing that. The reason for that is थोड़े बहुत अच्छे पैसे आ रहे हैं, he got promoted in his job and 5 बजे घर आ जाते हैं. That doesn't mean that he is enjoying what he is doing, it's just that he has leaned back into a comfort zone, and that should not be the approach. If you're not liking what you're doing, you should change it as soon as possible. So this was how you can plan for your different stages in Canada. I hope you guys like this video. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. Bye bye.